راستے بھر دلاور شاہ نے کچھ نہیں کہا۔ بارش بھی تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ پر پہنچے، بوا نے دلاور شاہ کو ساری بات شروع سے آخری تک بتا دی کہ کیسے رضیہ ماریا کو راستے سے ہٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے اور اس معصوم بچے کی عزت کو بچانے کے لیے وہ خود مانسک تناؤ میں جی رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی۔ دلاور شاہ نے تب بھی کچھ نہیں کہا، مگر ماریا کا ڈرا سہما حسن انہیں بے چین کر رہا تھا۔ بوا کی باتیں سنتے ہی ان کے ذہن میں چاچا سالار کی وہ بات گونج اٹھی کہ بیٹا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ ماریا اب دلاور شاہ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ عمر کا فاصلہ بھلے ہی تھوڑا زیادہ تھا، مگر دلاور شاہ ماریا پر دل سے فدا ہو چکے تھے۔ انہوں نے بوا سے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ماریا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بوا کے دل سے مانو ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے دلاور شاہ کو ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شاید اللہ نے ماریا کے ذریعے ہی انہیں اولاد کی خوشی دینی ہو۔ انہوں نے یہ بات ماریا کو بتا دی۔ ماریا بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بوا، میری اور دلاور شاہ کی عمر میں بہت فرق ہے، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر بوا نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، تو ابھی بچی ہے، زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں جانتی، کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا کون ہوگا؟ رضیہ تو تیرا نکاح صفدر سے کروا کر تجھے اسی دن گھر سے نکال دے گی، اور صفدر کو تو جانتی ہے کہ وہ کیسا جانور ہے، نشیڑی ہے، بیویوں کو مارتا ہے، اسی لیے اس کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کا شکر منا کہ اس نے تجھے دلاور شاہ جیسا مضبوط سہارا دیا ہے۔ جب ماریا نے دلاور شاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو وہ ایک ہینڈسم ربدار نوجوان نکلے۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، تیکھی ناک، گورا رنگ، لمبا قد اور چوڑی چھاتی، وہ ہر بات جو مرد کی وجاہت میں اضافہ کرتی ہے دلاور شاہ میں موجود تھی۔ ماریا اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ دلاور شاہ کی پہلی بیوی اروبا بہت غصیل اور زہریلی ہے۔ اگر اسے ان کے نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر بوا نے اسے کہا کہ تو اب دلاور شاہ کی ذمہ داری ہے، ان باتوں کو مت سوچ، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کر۔ خیر، دلاور شاہ نے جیسے تیسے وہ رات گزاری، کیونکہ انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ اگر آج موسم خراب نہ ہوتا تو وہ آج ہی مولوی کو بلا کر نکاح کر لیتے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ماریا کے لیے کچھ جوڑے خریدے، مولوی کا انتظام کیا اور سادگی سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا سوائے سالار شاہ کے، جو خود اس نکاح کے شریک ہوئے تھے، کیونکہ دلاور شاہ ان سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ سالار شاہ انہیں ڈھیروں دعائیں دی اور کہا کہ اس بات کا پتہ میری بیٹی کو نہ چلے۔ تو ان حالاتوں میں دلاور شاہ اور ماریا کا نکاح ہوا۔ سہاگرات کے بعد جب دلاور شاہ آفس پہنچے تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ آفس والوں نے انہیں آج اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے سے مسکان ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سالار شاہ نے بھی پہلی بار دلاور کو اتنا خوش دیکھا اور اپنی بیٹی کی قسمت پر افسوس کیا، جس نے دلاور شاہ جسے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ ادھر ماریا کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات کے بعد اس کے بدن میں بھینکر درد تھا۔ وہ دلاور شاہ کی شدتوں سے اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بوا نے ماریا کو تسلی دی کہ ہر عورت کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، پریشان مت ہو، دلاور شاہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ بہت وفادار اور تحفظ دینے والا انسان ہے، اب وہی تیرا سب کچھ ہے۔ بوا نے ماریا کے دل سے ہر ڈر کو دور کرنے کی پوری کوشش کی اور اسے سمجھایا کہ دلاور شاہ کے بارے میں کوئی غلط خیال مت لانا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ تیرے دامن کو خوشیوں سے بھر دے گا میری بچی۔ بوا نے ماریا کو فریش ہونے کو کہا اور اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کیا، ساتھ ہی اسے اچھے سے تیار ہونے کو بھی کہا تاکہ جب دلاور شاہ گھر آئے تو اپنی من چاہی بیوی کو خوبصورت روپ میں دیکھ کر اور زیادہ دیوانے ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور اپنی پہلی بیوی اروبا سے زیادہ خوش نہیں ہے اور اروبا سے ان کی روز کی تکرار چلتی رہتی ہے، اسی لیے بوا چاہتی تھی کہ دلاور شاہ کو زیادہ سے زیادہ سکون ملے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ ان کے باپ کا بوا پر بہت بڑا احسان تھا۔ دلاور شاہ نے اپنی ماں کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ انہیں میٹنگز کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، اسی لیے وہ گھر نہیں آ سکیں گے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
अरूबा को तो उनके आने जाने की कोई फिक्र थी ही नहीं। उसका घर में होना या ना होना बराबर था। लेकिन दिलावर की माँ रुकैया बेगम को तसल्ली देना जरूरी था, क्योंकि वही एक थी जो अपने बेटे के लिए हर वक्त परेशान रहती थी। ऑफिस का टाइम खत्म होने का आज सबसे ज्यादा इंतजार दिलावर शाह को था। ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले ही वह घर आ गए थे। आज उन्हें जितनी खुशी घर जाने की थी, उतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, मारिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहला कदम लाउंज में रखते ही उनकी नजर सबसे पहले मारिया पर पड़ी, जो उनका इंतजार कर रही थी। हसीन रूप में, आंखों में शर्म, हया, झिझक और चेहरे पर लाली छाई हुई थी। दिलावर शाह ने बुआ से कहा, बुआ, आप खाना लगाइए, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। बुआ ने आंख के इशारे से मारिया को अंदर जाने को कहा। मारिया भी शर्माती हुई कमरे की तरफ गई। कमरे में जाते ही दिलावर ने मारिया को अपनी बाहों में कस के भर लिया था। उनके अंदाज में जो दीवानापन था, वह मारिया ने बखूबी महसूस किया। कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा मर्द है, बल्कि उनकी सारी आदतें किसी कुंवारे और तड़पे हुए इंसान जैसी थी। उन्होंने मारिया को बेहद दीवानगी से चूमना शुरू किया था और उसकी तबीयत का भी पूछा था। मारिया ने कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने रात मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। दिलावर शाह जोर से हंसे और बोले, यह तकलीफ तो मामूली बात है, कुछ दिनों बाद तुम इसी तकलीफ के लिए मेरे पास आओगी कि दिलावर आओ और मुझ में समा जाओ। शुरू के दिन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन बाद में मेरी कुर्बत में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा और तुम मेरी कुर्बत के लिए तरसोगी। आज की रात के लिए तैयार हो जाना, एक स्पेशल ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर मारिया की जान सूख गई। उसने तड़प कर कहा, अभी तो कल वाली शिद्दतें मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। दिलावर शाह बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से अपना बनाऊंगा। खाने के बाद जब दिलावर शाह कमरे में आए, तो उन्होंने मारिया को एक पैकेट दिया और बोले कि यह पहन के आओ। मारिया ने जब वह पैकेट खोला तो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि उसमें एक रेड कलर की नाइटी थी। वह वॉशरूम में गई और जब वह नाइटी पहनकर बाहर आई तो बहुत ही शर्मा रही थी। उसका यह रूप देखकर दिलावर पागल हो गए। उन्होंने उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मारिया की सांसों को अपने अंदर भरते हुए, उसकी धड़कन से अपनी धड़कन मिलाते हुए वह बेकाबू हो रहे थे और मारिया को भी मनहोश कर रहे थे। वो धीरे धीरे उसके कानों में कह रहे थे, मारिया, बोलो ना, मेरे बच्चों की माँ बनोगी? क्या तुम मेरी औलाद को अपनी कोख में जगह देने के लिए तैयार हो? बोलो मारिया। मारिया उनकी बातें सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। दिलावर शाह का दिल उसकी निर्भीकता पर खुशी से भर गया, जिससे मारिया की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। शाह जी, ऐसा मत करो। शाह जी, मैं मर जाऊंगी। शाह जी, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। शाह जी, मुझ पर रहम करो। मारिया की नम सिसकियां शाह जी के कानों में खूबसूरत धुन की तरह लग रही थी। उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उसके होठों को चूमते हुए और उसकी गर्दन पर अपने प्रेम की मोहर रखते हुए वह दिलावर शाह के सानिध्य में आनंद से करा रही थी। दिलावर शाह अपनी उत्तेजना को बढ़ाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज रात वह अपना बच्चा मारिया के गर्भ में डाल देगा। मारिया और शाह की सांसें अनियमित हो गई थी। मारिया की तेज सांसें मारिया के दिल की धड़कनों को तेजी से हिला रही थी, जिसे देखकर दिलावर शाह का जोश बढ़ता जा रहा था, जिससे मारिया को बेहद शांति महसूस हो रही थी। मारिया की जान निकल ही गई थी। वे दोनों बुरी तरह से हाफ रहे थे। दिलावर शाह ने कहा, मारिया, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी खुशी और शांति महसूस नहीं की। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो मैं तुम्हारी उपस्थिति में महसूस कर रहा हूँ। मारिया, मेरी प्यारी, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो और मैं तुम्हारे शरीर से जीवन की सारी खुशियाँ पाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे तुम्हारे शरीर से पैदा हुए हैं। मैं तुम्हें जीवन में इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मारिया, मेरी प्यारी मारिया, मेरी बाहों में सो जाओ। मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। कल से तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। आज रात भी वह मारिया से 2-3 बार मिल चुका था और दिलावर शाह के कष्टों का अनुभव कर चुका था। हालांकि मारिया को अपना अभिमान सहन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी कि दिलावर शाह जैसा अमीर और खूबसूरत आदमी
उस पर अपना दिल और आत्मा हार चुका था। इसीलिए वह इन कष्टों को सहते हुए दिलावर शाह को खुले दिल से साथ दे रही थी। दिलावर शाह के दिल में अजीब सी इच्छाएं थी। वह मारिया को ले जाना चाहता था और उसके साथ नहाना चाहता था। उसने मारिया को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर से उठाया और उसे वॉशरूम में ले गया। बाथ टब को गुनगुने पानी से भरने के बाद उसने मारिया को उसमें लिटा दिया और उसे एक बार फिर से ढक लिया, और उसका खुद पर से नियंत्रण फिर से खत्म हो गया था। मारिया की सिसकियां एक बार फिर से वॉशरूम के माहौल में गूंजने लगी। जैसे जैसे वह अपनी हरकतें तेज कर रहा था, मारिया की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। दिलावर शाह के जुनूनी अंदाज को देखकर मारिया डर गई थी। मारिया की नाजुक त्वचा लाल हो गई थी, लेकिन दिलावर शाह को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह बस पूरी रात मारिया से प्यार करना चाहता था। अपने शरीर की सारी तीव्रता उसके शरीर में छोड़ने के बाद दिलावर शाह उसके साथ शवर के नीचे खड़ा हो गया था। मारिया दिलावर शाह से विनती करने लगी, शाह जी, नहीं, बस करो। शाह जी, शाह जी, मेरी आत्मा बहुत कमजोर है। मैं एक रात में आपसे इतनी तीव्रता नहीं झेल सकती। शाह जी, बाकी का काम कल कर लेना। शाह जी, प्लीज प्लीज शाह जी, मुझे जाने दो। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। शाह जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। शाह जी का मारिया के प्रति प्रेम, अपने नाम का इतना सुंदर उच्चारण उसके मुंह से होते देख उसे और भी उत्तेजना हो रही थी। आखिरकार उसने मारिया को उसकी पीड़ा से मुक्त करने का फैसला किया। उसे और खुद को अच्छी तरह से नहलाने के बाद वह बाहर आया। उसने खुद को तौलियों में लपेटा और मारिया को तौलिए से अच्छी तरह से साफ किया। कहा, अब सो जाओ, बाकी काम हम कल करेंगे। जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे गर्भ में नहीं आ जाता, मैं हर रात हर दिन इसी तरह तुम्हारे अंदर खुद को डालूंगा और जल्द ही तुम्हारे अंदर अपने प्यार की निशानी उगाऊंगा। दोनों ने कपड़े पहने और बहादुर राजा ने मारिया को अपनी बाहों में लिया और सोने के लिए लेट गए। सुबह बहुत ही सुहावनी थी। 2 दिन बाद जब वह अपनी हवेली पहुंचे तो उन्हें अपनी माँ रुकिया बेगम परेशान हालात में मिली। उन्होंने अपनी माँ को सलाम किया और उनकी तबीयत और परेशानी की वजह पूछी। रुकिया बेगम बोली कि अरूबा ने घर में एक नया झगड़ा खड़ा कर दिया है। पता नहीं उसे कहाँ से तुम्हारी शादी का डर लग गया है। अब वह बार बार बच्चा गोद लेने की जिद कर रही है। मैंने उसे समझाया कि बेटी, जब अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है तो किसी गैर की औलाद को पालने की क्या जरूरत है। क्यों ना अपना बच्चा पैदा किया जाए। तुम उसे शादी की इजाजत दे दो। लेकिन उसने तो जैसे तूफान खड़ा कर दिया है। नौकरों पर चिल्ला रही है, घर का सामान तोड़ फोड़ रही है और मुझे भी इज्जत देना भूल गई है। तरह तरह की बातें सुनाकर चली गई है। माँ की जुबान से यह बातें सुनकर दिलावर शाह का खून फूल उठा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ गया, जहां अरूबा बेड पर लेटी हुई थी। दिलावर शाह के आने पर उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मुंह बनाकर बोली, आज घर का रास्ता याद आ गया। आज भी नहीं आते तो चलता। दिलावर शाह बोले, मैंने घर फोन करके बताया था कि 2 दिन के लिए शहर से बाहर मीटिंग्स में जा रहा हूँ। फिर यह हंगामा किस बात का है। अरुबा बोली, तुम्हारी माँ ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा। तुम्हारे आते ही कान भर दिए गए होंगे, तो अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तुम्हें मेरी ख्वाहिश पता चल गई है। मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ और कोई भी संस्था मुझे अकेले को बच्चा देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए पति पत्नी दोनों की मौजूदगी जरूरी होती है। इस पर दिलावर शाह बोले, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं बच्चा गोद नहीं लूंगा। मैं अपना बच्चा पैदा करूंगा। तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। तुम्हारी इज्जत और मुकाम में कोई कमी नहीं आएगी। पहला दर्जा तुम्हारा ही रहेगा और जो पहला बच्चा होगा उसकी माँ भी तुम ही बनोगी। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है तो मुझे इजाजत दे दो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। दिलावर शाह की यह बात सुनकर अरूबा बेगम आग बबूला हो गई और बोली, यह तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दूंगी। अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान लेने से भी नहीं हिचकूंगी। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो और अपनी उस पागल माँ को भी समझा दो। दिलावर शाह का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अरूबा बेगम, तुम नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वह मेरी माँ ही नहीं, तुम्हारी ताई अम्मा भी है। तो कम से कम उस रिश्ते का ही लिहाज कर लो। लेकिन तुमसे क्या ही उम्मीद की जाए। जो औरत अपने बाप की इज्जत नहीं करती, अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, वो उसकी माँ की क्या इज्जत करेगी।
अरूबा बोली, अच्छा हुआ तुम्हें पता तो चल गया कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूँ। तो जल्दी से किसी बच्चे को गोद लेने की तैयारी कर लो, वरना मैं अपने अब्बा को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते और मुझ पर हाथ भी उठाने लगे हो। फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। दिलावर शाह को पहली बार उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। बोला, जो करना है कर लो और जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं कोई बच्चा गोद नहीं लूंगा और साथ ही दूसरी शादी भी करूंगा। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया, जबकि अरूबा उसके इन अल्फाज पर बुरी तरह आग बबूला हो गई और कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगी। अब अरूबा ने प्लानिंग की कि वह अपने बाप सालार शाह से झूठ बोलकर उनकी हमदर्दी हासिल करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि दिलावर शाह अपने ताया की किसी भी बात को टालता नहीं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसका बाप उसके इन सब हथकंडों से वाकिफ हो चुका है और उसी ने अपने भतीजे की दूसरी शादी भी करवा दी है। दिलावर शाह ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर उसकी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपने बेटे को ढेरों दुआएं दे रही थी कि अल्लाह मेरे बेटे को जल्द से जल्द औलाद की खुशी दे, ताकि मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे की खुशियां देख लूं और उसकी औलाद को अपनी गोद में उठा सकूं। दिलावर शाह और मारिया की शादी को दूसरा महीना शुरू हो चुका था। शाह की मोहब्बत और शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। दिन ब दिन वह मारिया के दीवाने होते जा रहे थे। एक मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। मजबूरी में ही घर जाते थे। अरूबा बेगम की जली कटी बातें सुनते और बर्दाश्त करते थे।